Okay, very good morning to all. We shall start the lectures because there are only 19 people are joined till now. So we should start the lectures. Now I'm going to present in the window. Hope these things are visible. Uh, Now this is one more questions we have to solve by using Laplace inverse, by using convolution theorem. Again a similar kind of a adjustment we have to apply, and we have to solve these questions. So I'm going to start here, that is f of s is equal to s square plus s upon s square plus 1 into s square plus 2s plus 2. This is generally a given a question. Now we have to just adjusting these things, like f of s is equal to, I'm taking s as a common factor, so remaining is s plus 1 upon s square plus 1 s square plus 2s plus 1. So now we can separate the functions. So according to this, that is, we are separating f1 of s. I'm taking s plus 1 upon s square plus 2s plus 1, sorry, plus 2 I think here. So we have to plus 2 and plus 2 kept as it is, and f2 of s, which is equal to s upon s square plus 1. So we just got the put the functions. If multiply again with f1 and f2, then we will get the same similar function like f of s, or same function we can get a return when we multiply both the function, and this is our rule. Now we have to calculate one by one, or Laplace inverse of one by one function. So Laplace inverse of f1 of s, which is equal to, hope all of you aware about these things, that is, whenever s plus 1 or s minus 1 is there in a function, then it might be comes to in your mind like it will be a like a exponential kind, means it will be a like a first shifting theorem concept. So s plus 1 is given, so you must create s plus 1 in the denominator also, because only s plus 1 in numerator is not sufficient, because s के terms यहाँ पे भी हैं denominator में भी. So you must be create, or you must create s plus 1 in denominator also. So we have to just little bit adjustment. So s plus 1 upon s plus 1 the whole square, I'm taking directly plus 1. We have to just adjust this part only, plus 1 plus 1. So s plus 1 the whole square will becomes s square plus 2s plus 1, and that 1 plus 1 it becomes 2. So and Laplace inverse of f2 of s, which is equal to, this terms we can write directly like cos of u, cos of u, s upon s square plus 1 square is given. So it is directly we can write, that is a Laplace inverse of that respective function is cos of u. Now Laplace inverse of f1 of s, which is equal to s plus 1, s plus 1 is there, so you can take as a exponential outside, so exponentially it will becomes what, e raised to minus u will becomes outside, remaining with terms will becomes what, Laplace inverse of s upon s square plus 1 square लिखो या 1 लिखोगे तो भी चलता है, because 1 square is 1. Now again you will get the similar kind of term. So Laplace inverse of f1 of s, which is equal to e raised to minus u into cos of u.
So we'll get we'll got both the functions Laplace inverse f1 of s and f2 of s. Now we have to apply in integration parts or the statement of a convolution theorem Laplace inverse of f1 of s into f2 of s, which is equal to integral 0 to t f1 of u into f2 of t minus u into du. So we have to just substitute the value here. The integral 0 to t e raised to minus u into cos of u, this is my first part, into second part cos of t minus u into du. Just a second. Cos of t minus u into du. Now we have to adjust the part, or we have to integrate the function, or how can we will integrate these functions. And also there are two trigonometric functions are there present, so we have to, I think, multiply and divide by 2 first we have to adjust the trigonometric functions. So I'm just applying here 1 by 2 or divide by 2 0 to t e raised to minus u outside into 2 into cos of u into cos of t minus u into du. Now we have to apply cos a into cos b, is it becomes cos a plus b plus cos of a minus b. We have to apply here, that is 1 by 2 integral 0 to t e raised to minus u, this part will becomes cos of a plus b. So again I have to declare here, that is this is my a part and this whole part is treated as a b part. So when I apply a plus b, this part will becomes u get cancelled, only remaining is t, plus cos of a minus b. When we apply a minus b, then this part is minus and this part will becomes plus. So you will getting cos of 2u minus t into du. Now we have to simplify this part and integrate. So 1 by 2 integral 0 to t e raised to minus u into cos of t plus e raised to minus u into cos of 2u minus t into du. Now we have to integrate the function. So we can integrate this function very easily. We have some formulas, so according to that formula we can simplify this part. But you must aware this formula. What was the formula? This is, we can integrate directly because it is cos t is there. But whenever there is a integral of such a kind, integral e raised to ax into cos of bx into dx, whenever there is a integration of such a kind is present, then what we have to apply here, that is how can we integrate this function. So 1 upon a square plus b square into e raised to ax as it is, e raised to ax as it is. Then there is a function we have to apply 1 by 1, that is a into cos of bx plus b into sine of bx. This is the formula of integrations. We have to apply the integration. So
According to this we can get this result, because without integration you are not supposed to integrate this part. So hope this formula all of you aware, because this is important. देखा है formula सभी ने? Then we'll proceed because this is I think just a common formula. Just a common formula in integration whenever exponential functions. I think already I shared few formulas. Just a second. Now I'm going to share the screen. Okay, now hope these things are visible. I'm presenting the all screen. Okay, now just see this formula, integral e raised to ax into cos bx. As I told, that is e raised to ax upon a square plus b square, a into cos bx plus b into sine of bx. That only things I written here, e raised to ax upon a square plus b square, a into cos bx plus b into sine of bx. If sine अगर साइन का टर्म यहाँ पे प्रेजेंट रहता है, if sine terms is there, then there is a negative signs. मतलब क्योंकि integration of sine, you all of you aware of that, is minus cos of that respective function. So e raised to ax upon a square plus b square, a into sine bx minus b into cos bx. So we have to apply the similar kind of integration rule here. This is formula just be applied, that second one. Now we'll move for the solution of this question. So integration of this part 1 by 2, you will getting this integration directly like e raised to minus u into cos of t by minus 1, or you can, if you want to multiply here, because cos t as it is, integration of e raised to minus u by minus 1, plus apply here the same rule. So e raised to minus u upon, here you have to consider as a 1, here you have to consider as a 2, means a is equal to 1 and b is equal to 2. So a square plus b square, so I can write 1 square plus 2 square, or we can write directly, that is 5, into, here a is minus 1, please try to understand, a is minus 1, so minus, you have to write as it is, cos of px is there, so cos of 2u minus t, plus, then you have to write b. What is the b part? B part is completely given. क्या रहेगा b? What will be b? Anyone? Only 2 और 2u minus t पूरा टर्म रहेगा. Anyone? किसी को नहीं पता आंसर? एक्सपेक्टिंग कि कोई तो आंसर देगा, बिकॉज वेरी इजी टर्म्स आर देयर.
और सभी के माइक्स बंद हैं। ओके, विल मूव अहेड, और आई कैन कंसिडर दैट इज़ किसी को अभी तक समझ में नहीं आया सम कैसे सॉल्व करते हैं, बट आई थिंक दिस इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. Anyone expecting some answer from your student side? अरे कोई तो बोलो कुछ. Okay, we have to solve here that question 1 by 5, or we can say that is e raised to minus u upon 1 square plus 2 raised to 2 minus a, as it is as considered cos of 2u minus t. Now we have to consider the second part here, because we have to solve this part as well. So plus 2 into, because as I consider the b is my 2, or b is my 2 and a is minus 1, so 2 into sine of 2u minus t, as it is 2u minus t kept as it is. Now further we have to complete the bracket and apply the limit point, that is 0 to t. So while the applying the upper limit 1 by 2, substituting here upper limit minus lower limit, you will getting, first when I substitute the upper limit, I will get e raised minus of e raised to minus t into cos of t. While substituting lower limit, this part will becomes 1, but minus minus it will becomes plus cos of t, plus 1 by 5 as it is. Now we have to substitute here also upper minus lower limit, so I am considering this part as it is. While substituting the upper limit, this will becomes e raised to minus t. Substitute here upper limit, so you will getting t 2t minus t, it will becomes cos of t, so minus cos of t. Substitute here upper limit, so you will getting plus 2 sine of t. So this whole thing is my upper limit, minus lower limit I am substituting 0 here, so e raised to 0 is 1 by default. Substituting 0 here, so I will getting this part as 0, cos in terms of negative it is kept as it is, so minus cos of t. Substituting 0 here, this part is 0, so you will getting minus 2 sine of t. Just simplify this parts, or minus this whole terms is positive, and lastly we if you simplify this part, you will getting like 1 by 2. Just a second, we have to use one more square bracket here because of this 1 by 2. So 1 by 2 kept as it is. After simplification, you will getting this part minus e raised to minus t, minus e raised to minus t cos t, but here is a 1 by 5 is there, so we can simplify further if required only, else kept as it is, और मल्टीप्लाई कर दो सबसे बेस्ट 1 by 2 को. तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली इस पार्ट को ऐसा लिख सकता हूँ अगर चाहिए तो, या फिर केप्ट एज इट इज़ भी रखोगे तो भी चल सकता है. जस्ट अ सेकेंड.
or kept as it is. We have to simplify this part. So at the end I'm just writing directly. If you not understand, then just tell me. 1 by 10, I'm writing directly this part. 1 by 10 e raised to t e raised to minus t. Directly I'm taking, that is 2 sine t, 2 sine t minus 6 cos t, 6 cos t. This is my one bracket, plus 2 sine t plus 2 sine t plus 6 cos of t. Just we have to simplify this part only. 1 by 5 से इसको सिंप्लीफाई कर दो, बाद में सीधा इस पार्ट को कम्प्लीटली एडिशन के बेसिस पे जाओगे तो देखो 1 बाय 5 है, इसको एलसीएम बेसिस पे अगर जाओगे आप करने के लिए तो 5 1 जा 5, तो 5 प्लस 1 दैट इज दिस पार्ट विल कम्प्लीटली ऐड विद द 6 पार्ट 6 टाइम. यहाँ पे किया क्या है, मैं वो स्टेप एलिमिनेट किया हूँ. चाहिए तो आप डायरेक्टली मतलब देख सकते हो. देखो ये 1 टाइम है, दिस इज़ 1 बाय 5 टाइम्स है. ये दोनों को अगर एडजस्ट करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट यू विल गेटिंग माइनस 6 कॉस टी ई रेस टू माइनस टी इंटू और माइनस 6 ई रेस टू माइनस टी इंटू कॉस टी यू विल गेटिंग एज इट इज़. सिमिलरली अगर ये पार्ट को आप अच्छी तरह से देखोगे, 2 साइन टी है, 2 साइन टी यहाँ पे है, माइनस ई रेस टू माइनस टी एज इट इज़ है. और यहाँ पे पार्ट अगर अच्छी तरह से देखोगे ये भी 1 बाय 5 टाइम्स है आपका पार्ट एज इट इज़. सो दिस पार्ट केप्ट एज इट इज़, दैट इज़ 2 साइन टी, क्योंकि यहाँ पे 2 साइन टी आपके पास नहीं है अगर अच्छी तरह से देखोगे आप लोग तो. लेकिन फिर से अगर इस पार्ट को ऐड यहाँ पे ध्यान दोगे तो माइनस माइनस दिस 2 टर्म्स आर पॉजिटिव. और इंस्टेड ऑफ दिस आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस पार्ट, नहीं तो लास्ट में फिर वही होगा कि ये चीज़ नहीं क्लियर हुआ है. 1 बाय 2 माइनस ई रेस टू माइनस टी इंटू कॉस ऑफ टी माइनस ई रेस टू इंस्टेड ऑफ माइनस ई रेस टू माइनस टी प्लस कॉस ऑफ टी. आई एम जस्ट सेपरेटिंग दिस पार्ट, पूरा एक साथ मैं सेपरेट कर रहा हूँ. प्लस और माइनस ई रेस टू माइनस टी इंटू कॉस ऑफ टी डिवाइडेड बाय 5. ये पार्ट को पहले सेपरेट कर रहा हूँ. प्लस ई रेस टू माइनस टी बाय 5 इंटू 2 साइन टी. ये फर्स्ट पार्ट को सेपरेट किया है. ये तो सभी टर्म्स आपके प्लस हैं, सिर्फ 1 बाय 5 से मल्टीप्लाई करो. कॉस टी बाय 5 और प्लस 2 साइन टी बाय 5. ये पार्ट और ये पार्ट को सिंप्लीफाई अगर आप करोगे, जब ये पार्ट और ये पार्ट फर्स्ट, सो बाय डिफ़ॉल्ट आई थिंक यू विल गेटिंग व्हाट, आफ्टर simplification of this part you will getting minus 6 times, or you can simplify here 1 by 2 minus 6 e raised to minus t into cos of t by 5. Similarly ये पार्ट cos t बाय 5 एंड cos t अगर सिंप्लीफाई करोगे तो आपको फिर से यही टर्म आपको मिलेगा, दैट इज़ द सेम टर्म यू विल गेटिंग प्लस 6 cos t बाय 5 एज इट इज़. रेस्ट कोई टर्म यहाँ पे एडिशन नहीं होगा, तो ये दोनों टर्म्स आपके एक ये टर्म के साथ और एक ये टर्म के साथ कम्प्लीटली ऐड हो चुके हैं. बचे हुए टर्म्स आप केप्ट एज इट इज़ लिख दो, लाइक प्लस ई रेस टू माइनस टी बाय 5 इंटू 2 साइन ऑफ टी
प्लस 2 साइन टी बाय 5 एज इट इज़। लास्ट में यहाँ पे क्या किया गया है, देखो जो ये हमने फाइनल रिजल्ट लिया है, 5 को अगर बाहर निकाल दोगे जो डिनोमिनेटर में, तो 1/10 एज इट इज़ हो जाएगा। ई रेस टू माइनस टी यहाँ पे है, ई रेस टू माइनस टी यहाँ पे है, वो कॉमन ले लिया है यहाँ पे कम्प्लीटली आपने, तो आपको मिलेगा 2 साइन टी और नेगेटिव वाला पार्ट -6 कॉस टी, वो एज इट इज़ है। प्लस सिमिलरली अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे तो बचा हुआ टर्म आपका यही है, 2 साइन टी और 6 कॉस टी, वो केप्ट एज इट इज़ है। तो ये सिंप्लीफिकेशन है इस पार्ट के बाद, इसके बाद है ये पार्ट, और उसके बाद ये पार्ट है आपका, और बाद में ये हमने रिज़ल्ट लिखा है। सो होप थिंग्स आर क्लियर, दैट इज़ ये रिज़ल्ट कैसे आ गया। मैं डायरेक्टली लिखा था क्योंकि एकदम क्लियर रिज़ल्ट दिख रहा है हमको कि ये दोनों पार्ट ऐड होने वाले थे इस ये दोनों पार्ट के साथ, एक ये पार्ट और एक ये पार्ट के साथ। So hope things are clear. Now we'll move ahead for the next question, but I'm expecting an answer from your side because already we solved many questions on convolution theorem. सर वो यूवी रूल से नहीं हो सकता था ऊपर? नहीं, जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक में ऑलवेज रिमेंबर, सॉरी इंटीग्रेशन में अगर एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, सी व्हाट इज़ द रूल क्लियरली आपको स्टेट कहता है, देखो अच्छी तरह से समझो, दैट इज़ वेन एवर इंटीग्रेशन इज लाइक एक्सपोनेंशियल एंड ट्रिग्नोमेट्रिक इनटू dx आपको करना है। अब मुझे बताओ, अगर मैं इसको u कंसिडर कर लूँ और इसको v कंसिडर कर दूँ, इसका डेरिवेटिव कभी ज़ीरो आ सकता है? नहीं। इसका डेरिवेटिव कभी ज़ीरो आ सकता है? नहीं। तो दोनों का डेरिवेटिव जब एंड ही नहीं होगा तो u इंटू वी रूल कैसे पॉसिबल है? u इंटू वी रूल क्या स्टेटमेंट बोलता है कि u का जो डेरिवेटिव आप निकालोगे, वेन एवर वी हैव टू कैलकुलेट द डेरिवेटिव ऑफ u, एक ऐसा पर्टिकुलर पॉइंट आएगा कि उस पर जाके आपको एंड होगा वो पार्ट। लाइक अगर अल्जीब्रिक फंक्शन है तो अल्जीब्रिक फंक्शन अगर एक्स क्यूब है, इसीलिए अगर इंटीग्रेशन में ऐसा भी आता है आपको 1/x² इंटू ई रेस टू ए एक्स इंटू डी एक्स समथिंग, तो भी आप इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में ये फंक्शन जो है, ये फंक्शन कभी भी एंड नहीं होने वाला है। इसका आप डेरिवेटिव निकालोगे तो ये पावर कम्प्लीटली इंक्रीज़ होते जाएगा, और हमारा मेन मोटिव रहता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में कि यू पार्ट एक पर्टिकुलर स्टेप पे आने के बाद ख़त्म हो जाए या एंड हो जाए, वैनिश हो जाए, जिससे फर्दर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसके लिए जब भी कभी भी एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक आता है तो आपके लिए आपको डायरेक्टली फार्मूला गिवन है, जो फार्मूला मैंने अभी थोड़े टाइम पहले आपको बताया है। ये फार्मूला इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का ही फार्मूला है, लेकिन कैसा है ना, ये डिराइव्ड है, इसको फर्दर सिंप्लीफिकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, फर्दर सिंप्लीफिकेशन ज़रूरी नहीं है, डायरेक्टली यू कैन अप्लाई दिस थिंग्स। सो प्लीज़ रिमेंबर दिस थिंग कि ये दो फार्मूले आपको यूटिलाइज़ करने हैं। इवन आगे हम फूरियर सीरीज़ पढ़ेंगे, उसमें भी ऐसे फंक्शंस हमको मिलेंगे। फूरियर सीरीज़ तो पूरी तरह से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है, लेकिन उसमें अगर एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक आता है या एक्सपोनेंशियल इंटू कॉस, एक्सपोनेंशियल इंटू साइन आ रहा है, तो आपको यही फार्मूला यूटिलाइज़ करना है। सो प्लीज़ रिमेंबर दिस थिंग्स। नाउ वन मोर टाइम आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन। थोड़ा सा क्वेश्चन चैलेंजिंग है, नॉट लाइक ए चैलेंजिंग कह सकते हैं इसको, थोड़ा सा आपको याददाश्त को याद करवाने वाली सम्स हैं कि आपको याद है या नहीं याद है। यहाँ तक तो वही चीज़ हमने किया है, सेम थिंग्स वी डिड अप्लाइड हियर, दैट इज़ टेकिन द s+1 वाला रूल और फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम रूल। यहाँ पे इंटीग्रेशन अप्लाई किया है, इंटीग्रेशन में दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यहाँ पे इंटीग्रेशन में दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यहाँ पे हैं, दो फंक्शंस हैं, तो उसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 वाला रूल अप्लाई किया गया है एज इट इज़। 2 cos a cos b वाला अप्लाई करने के बाद सिंप्लीफाई किया गया। एक फंक्शन कांस्टेंट है तो वो तो डायरेक्टली इंटीग्रेट हो जा रहा है, दूसरा फंक्शंस में ये रूल अप्लाई करो, हमेशा ये रूल अप्लाई करके सिंप्लीफाई करना इंपॉर्टेंट है। सिंप्लीफाई करके एट द एंड रिजल्ट आता है, वो सिंप्लीफिकेशन मैंने यहाँ पे दिया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन and last question of convolution theorem.
होप कन्वोल्यूशन थ्योरम अंडरस्टैंडेबल है, समझने लायक है और करना है आपको, क्योंकि यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में दिस क्वेश्चन नियर अबाउट कैरीज 8 मार्क्स और समटाइम्स 6 मार्क्स। 8 मार्क्स तो कंफर्म आ ही जाता है, अपने को मिलता ही है सॉल्व करने के लिए, बट बहुत बार 6 मार्क्स के लिए भी पूछा जाता है, डिपेंड अपॉन द वेटेज ऑफ द चैप्टर। नो सेकेंड क्वेश्चन फॉर टुडेज, एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 3 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2 s square plus 2s plus 5. So again we have to simplify this part. So given question is my f of s square plus 2s plus 3 divided by s square plus 2s plus 2 and s square plus 2s plus 5. This is our given question. देखो फैक्टर क्रिएट कर सकते हो, एस स्क्वायर प्लस 2s इधर भी है, एस स्क्वायर प्लस 2s इधर भी है, एस स्क्वायर प्लस 2s इधर ही है, तो इतना तो आपको नॉलेज अच्छी तरह से है कि कैसे सिंप्लीफाई करना है, क्या करना है। वी हैव टू सिंप्लीफाई दिस पार्ट्स लाइक एफ ऑफ एस विच इज इक्वल टू s प्लस 1 द होल स्क्वायर प्लस 2, similarly here s plus 1 the whole square plus 1, s plus 1 the whole square plus 4, 4 plus 1 5 हो जाएगा, 1 plus 1 2 हो जाएगा एंड 2 plus 1 3 हो जाएगा अगर सिंप्लीफाई करके फिर से लिखोगे। नाउ वी कैन टेक बैक ऑफ दिस पार्ट, हम लोग इसको वो करेंगे तो होपफुली द रिज़ल्ट यू विल गेटिंग वेरी इजीली। और इन्वर्स ऑफ लाप्लास जैसे ही मैं अप्लाई करूँगा तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लाप्लास इन्वर्स ऑफ एफ ऑफ एस विच इज़ इक्वल टू, जैसे ही मैं लाप्लास इन्वर्स अप्लाई करूँगा जहाँ पे भी s plus 1 है it will comes out as a e raised to minus t, remaining will becomes what, Laplace inverse of s square plus 2 upon s square plus 1 और s square plus 4. hope these things are clear to everyone कि ये कैसे आ गया है, कैसे हमने सॉल्व किया इस पार्ट को, s square एंड दिस पार्ट। अभी यहाँ पे मैं सिंप्लीफाई करता हूँ इस पार्ट को, सिंप्लीफाई करने पे मेरे को रिज़ल्ट आएगा कुछ और यहाँ पे हमको पहली बात तो सिंप्लीफाई करना ही होगा क्योंकि एस स्क्वायर अपॉन दिस पार्ट एंड प्लस 2, क्योंकि दो टर्म्स है यहाँ पे ऊपर ही, मल्टीप्लिकेशन के ज़रिए सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हो आप। सो आई एम राइटिंग दिस पार्ट हियर e raised to minus t as it is, Laplace inverse of, separating this part, s square upon s square plus 1 और s square plus 4 प्लस e raised to minus t Laplace inverse of 2 upon s square plus 1 s square plus 4. hope this things is clear to everyone. अभी यहाँ पे हमको दो बार लाप कन्वोल्यूशन अप्लाई करना है, थोड़ा दो चीज़ समझो अच्छी तरह से। कन्वोल्यूशन दो टाइम अप्लाई करना है, दो अलग अलग रिज़ल्ट आएगा। एक तो हमारा ये फंक्शन को सेपरेट करना होगा और एक ये फंक्शन को भी सेपरेट करना होगा। इसका एक f1 f2 आएगा और इसके भी f1 f2 जनरेट होंगे।
थोड़ा सा ध्यान दो अच्छी तरह से, यहाँ पे डायरेक्टली हम सेपरेट नहीं कर सकते थे, थोड़ा सा ध्यान दोगे तो इसके एक F1 आएगा s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, इसका एक F1 आएगा, F2 आएगा s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4, वो सिंप्लीफाई हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। इसका भी सिमिलरली आएगा एक F1 2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, एक आएगा एक आएगा 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 और एक आएगा 2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। सो आई एम जस्ट गिविंग दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सो फर्दर वी हैव टू सिंप्लीफाई, लेंदी सम है, एक ही सम ऐसा है तुम्हारे आगे, इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन से भी सॉल्व करेंगे क्योंकि आगे जो पार्ट है वो पार्शियल फ्रैक्शन वाला है। तो मैं सेपरेटली सॉल्व करता हूँ। लेट एस स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 एंड एस स्क्वायर प्लस 4। प्लीज़ डोंट गेट बी कन्फ्यूज़ के F1 F2 दो बार कैसे लिखा है। मैं फिर से बोलता हूँ, इसके दो फंक्शन आएंगे, इसके भी दो फंक्शन आएंगे। आपको F1 F2 से रिप्रेजेंट करना है करो, F3 F4 से रिप्रेजेंट करना है करिए, लेकिन दो फंक्शंस दोनों के जनरेट होने वाले हैं। लेट एस स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 एस स्क्वायर प्लस 4 गिविंग f1 of s is equal to s upon s square plus 1 and f2 of s is equal to s upon s square plus 4. So Laplace inverse of f1 of s क्या होएगा? Directly we can write cos of u, and Laplace inverse of f2 of s is equal to what? You will get cos 2u. So we have to integrate 0 to t, or just a second, Laplace inverse of f1 of s into f2 of s, which is equal to integral 0 to t cos of u into cos of 4u into du. You have to multiply and divide by 2, so I'm just writing here 1 by 2 integral 0 to t to cos d na cos 2u na sorry, even we written these things is improper because it will becomes cos of 2t minus u, because f1 of s into f2 of s is f1 of u into f2 of t minus u. So this part is cos of, sir. yes Sir, if f1 of s is cos 2u, then it's okay. फाइन, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप किसको भी आगे पीछे कर लो, इसको अगर आगे पीछे करना है, इसको cos ऑफ t माइनस यू रखना है, इसको cos 2u कैपिटल रखना है, फाइन, वो रिजल्ट सेम आने वाला है क्योंकि अल्टीमेटली अभी आगे जाके वही फॉर्मूला अप्लाई होने वाला है 2 cos a cos b वाला। तो अल्टीमेटली रिजल्ट में कोई दिक्कत नहीं आएगा, आपके ऊपर है, आप कैसे भी करो। खाली एक चीज़ आपको हमेशा बोलूँगा कि अगर दो फंक्शन है, जैसे प्रीवियस में f1 में हमने क्या था, e रेस टू यू इंटू समथिंग था cos ऑफ u, और f2 में cos ऑफ u समथिंग था। तो हमने क्या किया था, फर्स्ट को हमेशा जब ज़्यादा फंक्शन होंगे जिस फंक्शन में, उसको फर्स्ट फंक्शन बनाओ तो इंटीग्रेशन में इजी हो जाता है। अब यहाँ पे कैसा है, दोनों में एक ही फंक्शन है, लाइक cos, तो आप किसी को भी फर्स्ट बनाओ, किसी को भी सेकंड करो, क्रिएट करो, तो कोई दिक्कत नहीं आता है। नाउ 2 cos ऑफ u इंटू cos ऑफ 2t minus 2u into du. Now integrate this part, so 1 by integrate not, apply the formula 1 by 2 integral 0 to t 2 cos a cos b, it will becomes cos of a plus b. So while applying a plus b, this part kept as it is, like 2t, a is your, मैं फिर से यहाँ पे लिखता हूँ, that is a आपका ये पार्ट रहेगा, b आपका पूरा ये पार्ट रहेगा। तो a प्लस बी जैसे ही आप करोगे यहाँ पे, तो 2t एज इट इज़ आ गया, और u माइनस 2u, इट विल बिकम्स ओनली रिमेनिंग इज माइनस u। होप थिंग्स आर क्लियर। प्लस cos ऑफ a माइनस b, तो a माइनस b करोगे तो u प्लस 2u, इट विल बिकम्स 3u
और माइनस ये पार्ट a माइनस b कर रहे हो तो ये पार्ट अपना माइनस हो जाएगा 2t और एज इट इज़ इनटू du. Next you have to apply the integration, so 1 by 2, the integration you will getting is sine of 2t minus u upon minus 1 plus sine of 3u minus 2t upon 3, limit point as it is 0 to t. So we have to substitute the upper minus lower limit here. So 1 by 2, substituting the upper limit, you will getting what? Minus, substitute here upper limit, so sine of 2t minus t, remaining is sine t, so minus sine of t, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे आपको मिलेगा प्लस साइन ऑफ टी डिवाइडेड बाय 3, ये अपर लिमिट मिल रहा है आपको, माइनस लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करोगे 0 इधर रख दोगे तो साइन 2t बाय माइनस 1, साइन ऑफ 2t बाय माइनस 1 और क्या माइनस साइन 2t लिखना है तो 0, यहाँ पे जैसे ही आप सब्स्टिट्यूट करोगे साइन ऑफ माइनस 2t बाय 3, सो माइनस साइन ऑफ 2t बाय 3, सिंप्लीफाई कर लो, सो दिस सिंप्लीफिकेशन गिव्स 1 by 2. सी अगर अच्छी तरह से यहाँ पे ध्यान दोगे तो ये माइनस दोनों टर्म्स आपके प्लस हैं, तो कोई भी टर्म्स यहाँ पे ऐड नहीं जा रहा है, मतलब एडिशन अगर करना है तो ये पार्ट ऐड होंगे और ये पार्ट ऐड होने वाले हैं दोनों, तो आई एम जस्ट सिंप्लीफाइंग दिस पार्ट, सो माइनस 3 साइन टी प्लस माइनस 3 साइन टी प्लस साइन टी, सो रिमेनिंग इज माइनस 2 साइन ऑफ टी डिवाइड बाय 3, ये फर्स्ट पार्ट के लिए, ये तो सभी टर्म्स आपके प्लस हैं, सो 3 साइन 2t प्लस साइन 2t, this part will considered as 4 sin 2t divided by 3, so plus 4 sin of 2t divided by 3, इसको फर्दर सिंप्लीफिकेशन आप कर सकते हो, तो 1 by 2 4, या एक स्टेप डायरेक्टली मैं लिखता हूँ यहाँ पे, आई एम जस्ट राइटिंग लाप्लास इनवर्स, ये किसका था? लाप्लास इनवर्स ऑफ s अपॉन s स्क्वायर प्लस 1 एंड s स्क्वायर प्लस 4 is equal to 4 sine of 2t minus 2 sine of t divided by 6, can give this is equation number 2. लास्ट में इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे. नाउ फर्दर वी हैव टू सिंप्लीफाई, इस पार्ट को सिंप्लीफाई करना है अभी, 2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 इंटू एस स्क्वायर प्लस 4, लेट्स सी क्या आता है रिजल्ट. सो नेक्स्ट लाप्लास इनवर्स ऑफ 2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 and s square plus 4 gives f1 of s is equal to 1 upon s square plus 1 and f2 of s is equal to 2 upon s square plus 4. So hope things are clear, that is दोनों को मल्टीप्लाई करोगे फिर से सेम फंक्शन आएगा, so I am taking that is Laplace inverse of f1 of s which is equal to sine of u and Laplace inverse of f2 of s is equal to sine of 2u. Just integrate the part, so Laplace inverse of f1 f1 of s into f2 of s
which is equal to integral 0 to t sine of u into sine of 2u, means t minus u we have to write here, into du. Again we have to multiply and divide by 2, so 1 by 2 integral 0 to t 2 into sine of u into sine of 2t minus 2u into du. We have to just simplify, or we remember yesterday I think we solved such a kind of a numericals 2 sine a sine b wala part. So 1 by 2 I'm just applying directly 0 to t. The first part is cos a minus b, cos a minus b, 2 sine a sine b, cos a minus b when apply to cos of a minus b. So you have to consider this is a and this is b. सो वी हैव टू कॉस ए माइनस बी, जैसे ही इसको माइनस अप्लाई करोगे तो ये पार्ट आपका ऐड होके आपको मिलेगा 3u माइनस 2t, बीच में साइन माइनस आएगा, कॉस ऑफ ए प्लस बी के साथ लिखना है अभी आपको। ए प्लस बी अप्लाई करोगे आप तो 2t एज इट इज़ आपका रहेगा, लेकिन ये u माइनस 2u रिमेनिंग इज़ ओनली माइनस u और इंटू डू यू। now we have to integrate this function। फॉर्मूला बराबर हमने सॉल्व किया है, कोई करेक्शन तो नहीं है, चेक कर लो एक बार। cos a minus b we applied minus cos a plus b, so 1 by 2 as it is, integration of this part you will getting sine of 3u minus 2t by 3 minus sine of 2t minus u, प्लस इसको कर दे रहा हूँ क्योंकि डिवाइड बाय -1 आएगा तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ प्लस। तो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग करो, देखो कॉस का इंटीग्रेशन साइन होता है 2t माइनस यू एज इट इज़, डिवाइड बाय -1 आएगा, बट यहाँ पे ऑलरेडी निगेटिव पार्ट है, सो दैट टर्म आई जस्ट रिटर्न एज अ पॉजिटिव। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो 0 to t एज इट इज़, so 1 by 2 substituting the upper limit, while substituting the upper limit this part will become sine of 3t minus 2t is remaining is sine t by 3, so sine of t by 3। यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूट करो तो साइन t मिलेगा आपको प्लस साइन ऑफ t, माइनस लोअर लिमिट 0 सब्स्टिट्यूट कर दो, 0 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे आप, सो माइनस साइन ऑफ 2t बाई 3, सब्स्टिट्यूट हियर 0, यहाँ पे 0 सब्स्टिट्यूट कर दो तो आपको मिलेगा प्लस साइन 2t ओनली। सो अगेन वी हैव टू सिंप्लीफाई दिस पार्ट, जैसे ऊपर हमने सिंप्लीफाई किया है। सो 1 by 2 डायरेक्ट सिंप्लीफिकेशन लिख सकते हो, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। दिस विल बिकम्स 4 साइन t बाई 3 हो जाएगा। ये सिंप्लीफाई करोगे तो 3 टाइम्स -1 टाइम्स, और रिमेनिंग इज़ हाउ मच टाइम्स, दैट इज़ 2 टाइम्स, और वो 2 टाइम्स आपका पॉजिटिव रहेगा लेकिन आप लिखोगे निगेटिव। सो आई एम जस्ट राइटिंग -2 साइन ऑफ 2t डिवाइडेड बाय 3। लास्ट सिंप्लीफिकेशन वी कैन अप्लाई, और लाप्लास इनवर्स ऑफ 2 upon s square plus 1 into s square plus 4, you will getting 4 sin t by minus 2 sin 2t by 6. This is equation number 3. Now we have to just substitute here, or I'm just writing that equation 2 and 3 in equation 1. What was equation 1? I'm just writing that is Laplace inverse of f of s
which is equal to e raised to minus t, because s plus 1 हमने निकाला था टर्म e raised to minus t इंटू उसमें फर्स्ट पार्ट को हमने लिखा था, अगर एक बार मैं गो थ्रू करवाऊँ तो अच्छा रहेगा। दिस वाज आवर इक्वेशन ई रेस टू माइनस टी लाप्लास इनवर्स, तो इसका पार्ट हमने निकाला एस स्क्वायर अपॉन एस, ये पार्ट, तो वो चीज़ मैं यहाँ पे लिखूँगा इक्वेशन टू 4 साइन 2t माइनस 2 साइन t बाई 6। Let's check this part. Four sine 2t minus 2 sine t by 6. So I'm just writing here 4 sine 2t minus 2 sine t by 6, और एक टर्म ये भी था बीच में साइन प्लस था क्योंकि एस स्क्वायर प्लस 2 करके टर्म था, ई रेस टू माइनस टी 4 साइन टी माइनस 2 साइन 2t बाय 6। ये टर्म हमको मिलता है 1/6 और ई रेस टू माइनस टी आप कॉमन निकाल सकते हो, तो या फिर केप्ट एज इट इज़ ई रेस टू माइनस टी मैं कॉमन निकालता हूँ और 6 भी कॉमन निकाल देता हूँ यहाँ पे, तो मेरे टर्म्स डायरेक्टली सिंप्लीफाई हो जाएंगे यहाँ पे। अगर ध्यान दोगे आप तो डायरेक्टली सिंप्लीफिकेशन के लिए आपको मिलता है। देखिए 4 साइन 2 टाइम्स है, ये 2 टाइम्स साइन 2t टाइम्स है, डिनोमिनेटर सेम है इसलिए हम डायरेक्टली कर सकते हैं ये टर्म्स अप्लाई। सो रिमेनिंग इज विल बिकम्स हाउ मच, दैट इज़ 2 साइन 2t। ये 4 साइन t टाइम्स है, ये 2 टाइम्स है नेगेटिव साइन के साथ, तो ये भी आपका हो जाएगा 2 साइन t। 2 कॉमन निकाल के कैंसिल कर दोगे तो फाइनल रिज़ल्ट आपको मिल जाएगा। या लाप्लास इन्वर्स किसका था ये, अगर आपको याद होगा तो क्वेश्चन जो हमारा था एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 3 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2 इंटू एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5, ऐसा करके सम था हमारा, विच इज़ इक्वल टू डायरेक्ट हमको रिज़ल्ट मिलता है ई रेस टू माइनस टी बाय 3, 2 कॉमन निकल गया इसलिए 3 हो गया है, इंटू साइन ऑफ 2t प्लस साइन ऑफ t, और ये हमारा फाइनल रिज़ल्ट हमको मिलता है। होप इट इज़ क्लियर, दैट इज़ इन दिस क्वेश्चन कोई डिफ़िकल्ट नहीं था, खाली लेंदी था क्योंकि कन्वोल्यूशन 2 टाइम्स अप्लाई करना पड़ा। अब तक हमने जितने क्वेश्चन सॉल्व किए हर एक में क्वेश्चन में हम लोग को कन्वोल्यूशन सिर्फ एक बार अप्लाई करना पड़ता था, बट यहाँ पे हमको 2 टाइम्स अप्लाई करना पड़ा, जिसकी वजह से सम लेंदी हो गया। अगेन वन मोर टाइम आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस पार्ट, कैसे सॉल्व किया है ये सम को। वेरी इजी, बहुत इजी न्यूमेरिकल है। सी क्वेश्चन वॉज क्लियरली गिवन, फंक्शन में कन्वर्ट कर दो, मतलब फंक्शन से रिप्रेजेंट कर दो। एस स्क्वायर प्लस 2s के बेसिस पे मेरे माइंड में क्लियर हो जाता है कि s प्लस 1 का ब्रैकेट बाय डिफ़ॉल्ट जनरेट कर सकते हैं। मैथमेटिक्स इतना तो बेसिक चीज़ है, ए स्क्वायर प्लस 2b अगर मिलता है टर्म आपका, तो वो टर्म्स डायरेक्टली आप जनरेट कर सकते हैं वहाँ पे, तो वो चीज़ हमने यहाँ पे जनरेट किया है, इसकी वजह से एक्सपोनेंशियल आउट किया है। यहाँ पे ऐसा सेपरेटली नहीं भी लिखना है तो भी चलता है, एक ही एक्सपोनेंशियल बना दो और पूरे को ब्रैकेट में लिख दो, बट मैंने दोनों एक्सपोनेंशियल शो किया है यहाँ पे, दोनों को साथ सेपरेटली, क्योंकि बहुत लोग इसको साथ में रख के भी सॉल्व करना पसंद करते हैं ई रेस टू यू को। बट हमेशा कोशिश करो कि फंक्शन जितना सिंप्लीफाई हो सके उतना सिंप्लीफाई करके कन्वोल्यूशन में रखो, क्योंकि कन्वोल्यूशन में अगर एक्सपोनेंशियल ट्रिगो दोनों पार्ट को लेके चलोगे तो आगे सॉल्व करने में मतलब सॉल्व होता है, बट प्रॉब्लम ये होता है अगर कोई भी टर्म अगर मिस आउट हो जाए तो फिर बहुत डिफ़िकल्ट होता है एरर फाइंड आउट करने के लिए और एरर रिड्यूस करने के लिए। f1 f2 हमने दोनों फंक्शन से जनरेट किए हैं,
एक फंक्शन ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वन ए स्क्वायर प्लस 4 दिया है, इसलिए हमको दो फंक्शन दिया है यहाँ पे, वो दोनों को हम लोग कन्वोल्यूशन से सॉल्व कर रहे हैं। कन्वोल्यूशन से सॉल्व करने के बाद हमको एक रिज़ल्ट आता है, उसको इक्वेशन नंबर 2 दिए। सिमिलरली जो सेकेंड फंक्शन है आपका 2 अपॉन ए स्क्वायर प्लस वन इंटू ए स्क्वायर प्लस वन, बहुत लोग का माइंड आता है कि 2 अपॉन ए स्क्वायर प्लस वन क्यों नहीं लिया, लेकिन कुछ वैल्यू नहीं था इसके लिए, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस वन है तो बाय डिफ़ॉल्ट इधर ए स्क्वायर प्लस वन है और न्यूमरेटर में एस नहीं है, मतलब ये साइन के टर्म्स वाले ही पार्ट हैं दोनों। जैसे ही सिंप्लीफाई करोगे तो अगर ए स्क्वायर प्लस वन है तो वन का ए, ये अगर ए स्क्वायर है तो ऊपर ए होना चाहिए, मतलब वन होना चाहिए, तो इसको 2 ऊपर रख के मतलब नहीं है कुछ भी। और इधर 4 है तो ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट 2 आना चाहिए, तो 2 इसलिए इसके साथ यहाँ पे F2 में सब्स्टिट्यूट किया गया है। क्योंकि अगर बाई चांस आप इसको 2 रख दो तो 2 इधर बाहर रख के आपको लेना पड़ता, फिर यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करते, तो एट द एंड जब सिंप्लीफाई आप करते तो ये वाला 2 और वो वाला 2 आपका कैंसलेशन में ही चले जाएगा। तो अगर इनकेस कोई डाउट वगैरह आता है कि गलती से ले लिया आपने 2 और सॉल्व कर दिया और बाद में इधर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2 किया, तो जैसे ही यहाँ पे रिजल्ट सॉल्व करने जाओगे 2 कैंसिल हो जाएगा वो पार्ट का, क्योंकि यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आपका 2 इंटू साइन 2u आएगा, साइन u आएगा और इधर 1/2 आएगा। तो जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होते हैं यहाँ पे तो 2 कैंसिल हो जाता है। सिमिलरली यहाँ पे 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला अप्लाई किया है, cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, and at the end we got one more result, that is equation which represented by equation number 3. We will put in equation 2 and 3 in equation number 1. So after simplification and taken a common part of e raised to minus t by 6, we got this result, and after further simplification 2 comes out as a common factor, so 6 is divisible by 2, so you will getting that is e raised to minus t by 3 into sin 2t plus sin t. So this is our result. Now convolution theorem is over. Next time onwards we will start the next method. Hope the convolution method is understandable for your side. Now if anyone having any doubts you can ask. हेलो, सम्स दिखा आपको कि बीच में ही कनेक्शन लॉस हो गया था? Just a second, one more time I'm going to explain. Just a wait. बीच में connection might be lost, so कहाँ तक थे हम लोग? कनेक्शन जब था मतलब कंटिन्यू, हमने ये सेकेंड इक्वेशन डिफाइन किया था तभी तक कनेक्शन था। एनीवन कैन कमेंट प्लीज़। नहीं सर, सेकेंड इक्वेशन नहीं आया था तभी कनेक्शन चले गया था। हाँ उसके पहले। ओके, ये पार्ट हमने डिफाइन किया था उस ये टाइम था। सर ये फॉर्मूला लगाया ना तभी, ये फॉर्मूला तो एटलीस्ट किसी एक को मुझे कॉल करना चाहिए था ना सडनली। सर वो बोला, लेकिन अभी क्या सीआर लोग चला। Don't use such a kind of languages. See, if such a things are happen during the lectures, you can call me directly. मेरा नंबर तो है ग्रुप में, डायरेक्टली एक कॉल कर दो। बिकॉज कैसा है कि यहाँ पे जब स्क्रीन शेयर करते रहो तो फिर पता नहीं चलता है वेदर द गूगल मीट इज़ कंटिन्यू और नॉट। सो सम टाइम इट माइट बी क्रिएटेड अ डिफ़िकल्टी, क्योंकि जो हाई प्रेजेंट का ऑप्शन रहता है अभी मैं हाइड कर देता हूँ, तो एक आध बार मेरे को ध्यान नहीं आता है, और कंटिन्यू जब सम सॉल्व करते रहो तो उस फ्लो में ध्यान नहीं रह जाता है। So in case in future if such things are occurred or happen कि
लेक्चर्स के टाइम पे कनेक्शन लॉस्ट हो गया और कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो कोई भी एक इनिशिएटिव लेके कॉल कर दो, किसी का वेट मत करो। एनी वन कैन डायरेक्टली डायल, क्योंकि कैसा है कि मोबाइल भी फ़ोन नहीं यूज़ करते हैं हम लोग, तो फिर उसमें कैसा होता है कि व्हाट्सअप के मैसेजेस देखना डिफ़िकल्ट होता है। सो अगर कॉल सर चैट बॉक्स में क्या? हाँ, चैट बॉक्स, हाँ उसमें किया था ना। अरे चैट बॉक्स में करेगा तो कैसे पता चलेगा जब कनेक्शन ही नहीं मेरे को मिलेगा। सर का नेटवर्क इशू है जो नहीं दिखेगा ना भाई। So how can, so you can call me directly, leave it about WhatsApp or chat box or anything. Now see, I'm just explaining in 5 minutes, just taking 5 minutes, not more than that. See, we just separated the first function s square upon s square plus 1 s square plus 4. So f1 of s and f2 of s is given, और we taken फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई किया है, 2 cos a cos b का फॉर्मूला अप्लाई किया है, सिंप्लीफाई किया है। 2 cos a cos b इज़ वॉट, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। इंटीग्रेट किया है फंक्शंस को, cos का इंटीग्रेशन साइन आता है, cos का साइन माइनस यू है इसलिए -1, 3u है इसलिए डिवाइड बाई 3। सब्स्टिट्यूटिंग द अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, सो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, देखो सिंप्लीफाई कर दिया है ये, और ये पार्ट यहाँ पे एडिशन किया है, तो -3 sin t प्लस साइन टी, रिमेनिंग इज -2 sin t बाई 3। सिमिलरली हियर 3 sin 2t माइनस साइन, मतलब ये सभी टर्म्स आपके प्लस हैं, क्योंकि माइनस साइन यहाँ से कॉमन निकालोगे, ये पार्ट प्लस हो जाएगा, तो 3 sin 2t प्लस साइन 2t इज रिमेनिंग इज 4 sin 2t बाई 3। मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया है, डिनोमिनेटर में जो 2 है, तो ये पार्ट आपको इक्वेशन नंबर 2 मिलता है। सिमिलरली जैसे हमने इक्वेशन नंबर 1 में से फर्स्ट पार्ट को सॉल्व किया है कन्वोल्यूशंस के ज़रिए, एस स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 एस स्क्वायर प्लस 4, उसी तरह सेकेंड पार्ट को लिया है 2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 को, और इसको अभी सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग। तो सेकेंड फंक्शन देखिए, 2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 और एस स्क्वायर प्लस 4 आपको क्या देता है, दो फंक्शन f1 ऑफ s ये मिलेगा, f2 ऑफ s ये पार्ट आपको मिल जाता है। इसको भी सिमिलरली लाप्लास इन्वर्स लोगे तो साइन के टर्म्स हैं, दोनों साइन के टर्म्स मिल गए। समटाइम्स ये जो 2 है, कोई स्टूडेंट यहाँ पे लेके सॉल्व करता है 2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, तो आपको 2 इंटू साइन यू मिलेगा, 2 इंटू साइन यू मिलेगा, तो फिर यहाँ पे आपको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये 1/2 इंटू साइन 2u आएगा, और बाद में 2 वो कैंसिल हो जाता है। तो देखो ध्यान दो, ध्यान दे के कम्प्लीटली फंक्शन लो, अगर मिस्टेक हो जाता है तो भी कुछ दिक्कत नहीं, वो 2 बाद में कैंसलेशन में जाने ही वाला है। सो again we applied 2 sin a sin b formula, 2 sin a sin b is what, cos a minus b minus cos a plus b, cos a minus b minus cos a plus b। तो cos a minus b करोगे तो क्या होगा, u माइनस ऑफ दिस पार्ट, तो माइनस करोगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो 3u माइनस 2t आपको मिलता है। और माइनस cos a प्लस b करोगे जब आप, माइनस cos ऑफ a प्लस b, तो u प्लस ऑफ दिस पार्ट, तो 2t एज इट इज़ रहेगा, लेकिन ये पार्ट -2u और प्लस u आपका -u आएगा। फिर से इंटीग्रेशन करोगे तो cos का इंटीग्रेशन आपको साइन मिल जाता है, दोनों टर्म्स आपको मिलेंगे। देखिए cos का इंटीग्रेशन साइन निगेटिव है, लेकिन जैसे ये -1 वहाँ पे डिवाइड हुआ था, वैसे -1 यहाँ पे डिवाइड होगा, तो वो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा। अपर लिमिट t रखोगे ये मिलेगा अपर लिमिट में, लोअर लिमिट का माइनस साइन लो, 0 रखोगे, 0 यहाँ पे रखोगे तो 3 इंटू 0 0 साइन ऑफ -2t माइनस साइन 2t बाई 3 होगा। सिमिलरली 0 यहाँ पे रखोगे, साइन 2t आपको मिलेगा। इसको भी सिंप्लीफाई कर लो, देखो 3 साइन t प्लस साइन t, 4 साइन t बाई 3 हो जाएगा, ये 3 साइन 2t माइनस साइन 2t माइनस 2 साइन 2t, मतलब प्लस साइन 2t बचेगा, 2 इंटू साइन 2t बाई 3, बट बाहर माइनस साइन है इसलिए निगेटिव। बाद में इसको फिर से सिंप्लीफाई किया गया है, डिनोमिनेटर सेम है इसलिए 4 साइन t माइनस 2 साइन 2t बाई 3 है, लेकिन बाहर 2 मल्टीप्लाई में था इसलिए 6 हो गया। इक्वेशन 2 और 3 आपको मिलता है, इक्वेशन 2 और 3 को आप इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करते हो। इक्वेशन नंबर 1 हमारा यही था, e⁻t अपॉन एस स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 एस स्क्वायर प्लस 4, उसका कन्वोल्यूशन से हमने ये रिजल्ट आया था जो इक्वेशन नंबर 2 में मैंने अभी रिप्रेजेंट किया था। सिमिलरली इस पार्ट का रिजल्ट यहाँ पे आया, वो सब्स्टिट्यूट करो, दोनों में e⁻t कॉमन है, वो कॉमन ले लिया, 6 कॉमन है ले लिया। फर्दर सिंप्लीफिकेशन दे दो खाली, 4 साइन 2t, यहाँ पे देखो -2 साइन 2t है, कैंसलेशन हो जाएगा, 2 साइन 2t, -2 साइन t है, और यहाँ पे +4 साइन t है, वो भी कैंसलेशन होके हो जाएगा। यहाँ से 2 कॉमन आप निकालोगे तो वो टर्म्स आपके कैंसिल होंगे,
और आपको मिलेगा e रेस टू माइनस टी बाय 3 इंटू साइन 2t प्लस साइन t। ये रिज़ल्ट है। एक बार गो थ्रू करो। कॉन्वोल्यूशन थ्योरम यहाँ पे स्टॉप होता है। कॉन्वोल्यूशन थ्योरम मैं वीडियो आज ही अपलोड कर दूंगा शाम में, तो एक बार गो थ्रू करो, क्योंकि कल से हम नेक्स्ट मेथड स्टार्ट करेंगे कॉन्वोल्यूशन पे। होपफुली नियर अबाउट 10 एग्जांपल्स हमने सॉल्व किया ही होगा। ये एग्जांपल्स को फिर से देखो अच्छी तरह से। 100% 8 मार्क्स या 6 मार्क्स का जो भी यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन आता है वो आपका मिस आउट नहीं होगा। नाउ anyone facing any doubts you can ask me, and always remember one thing, whenever we are facing any kind of such a things like internet down हो गया or something, you can call me directly because network है and all है, कभी भी कुछ भी possibilities है। and monsoon are started। कल थोड़ा प्रॉब्लम था मेरे एरिया में इंटरनेट का, इसकी वजह से मैं खुद लेक्चर थोड़ा डिले किया था। so similar kind things happen, so you can just call me directly, क्योंकि मुझे पता नहीं चलता है कभी कभार के चालू है लेक्चर या नहीं है, बिकॉज आई एम कंटिन्यू इन फ्लो, और सम जब सॉल्व करते रहो तो पता नहीं चलता, ध्यान नहीं आता है। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू टेक द अटेंडेंस, सो डोंट लेफ्ट, बिकॉज फ्रॉम जुलाई ऑनवर्ड्स, मतलब जुलाई का जो अटेंडेंस है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा आपके लिए। किसी को कुछ डाउट है तो ठीक, नहीं तो फिर हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। कल मिलेंगे। सी यू नेक्स्ट टुमारो। थैंक यू सो मच। नाउ यू कैन लेफ्ट इफ़ यू वांट।